I have the OG good girl from Panchayat. किसी ने लिखा है love this female actor. Her nose structure is just like Hrithik. I have always been in a shell, always been shy and not very outgoing. So you have been a good girl. Yeah, I've always been a good girl, yes. She is a sanskari pookie. Oh God. सारे संस्कार ना वो एक लड़की से ही एक्सपेक्ट किए जाते हैं. जब मैं हुई भी थी तो रिलेटिव्स होते हैं वो कमेंट्स मारते थे कि अरे देखो आखिरी वाला भी लड़की हो गई. मैं अपने आप को कभी सुंदर नहीं मानती थी. मुझे कास्टिंग वाले ने बोला था कि अगर तुम मेकअप करना नहीं सीखी तो तुम 6 महीने बाद भी आराम नगर में स्ट्रगल करती हुई दिखोगी. Why is the world obsessed with सीधी लड़कियां? मैं बहुत सीधी सादी रही हूँ. I've been a good girl, but I want to be a bad girl now. Yes. Yet another episode of the Good Girls Show, and इस episode में I have the OG good girl from Panchayat, Rinki urf Sanvika. It's Sanvika or it's Sanvika? Sanvika. Sanvika. So I'm pronouncing it correctly. Yeah. Welcome on the Good Girls Show, Sanvika. Thank you so much, Pari. Thank you for having me here. How are you? I'm good. I'm good. आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ यार. How are you feeling? This phase of this sudden fame, recognition, love. Actually, there's more love. Yeah. Also, you're giving interviews, you're talking to people. How are you actually feeling? Just after the release of Panchayat, I think इतनी सारी चीज़ें हो रही है ना, so it's very difficult me to process कि कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है. Like every day is like busy with interviews, तो सोचने का भी टाइम कम मिलता है कि क्या हो रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है. बट जो प्यार मिल रहा है और स्पेशली जो आजू बाजू के जो लोग हैं जो मेरे लाइक पर्सनल लाइफ में है, वो जब मेरी सक्सेस से वो खुश हो रहे हैं, वो खुशी देखकर मुझे थोड़ा सा बेटर फील होता है. क्योंकि बॉम्बे जैसे शहर में आपको अच्छे दोस्त मिल पाना बहुत डिफिकल्ट है. Correct. Yeah, I'm trying to enjoy this thing, enjoy this phase. That's amazing. As I said, इस शो का नाम है The Good Girls Show, Yeah. and we want to know what kind of a girl Pooja was growing up. Okay, so we'll get to that conversation. Start करते हैं with a segment जिसका Yeah. नाम है The Good Girls Report Card. Okay. पहला segment on this report card is called I've been called. तो यहाँ I've पे been कुछ called. words हैं. You have to हाँ. tick the words जो लोगों ने use किए हैं आपके लिए. इसमें से कोई सा भी आई डोंट थिंक सो मेरे लिए यूज किया है. What? Yeah, I have not been loud and bold and sarcastic and talkative. I was a very quiet girl. Girls girl, yeah, that is one thing कि you know I was brought up in a girls environment. I have like sisters. और फिर जब मेरी schooling भी हुई थी तो it was a girls school. अच्छा. So yeah, I could. This is the only thing. Girls. Dramatic, no, never. Sensitive, yes, very sensitive. Bossy, no. Too much, no. Rebel, no. Opinionated, yes. Brave, yeah, you Kabhi can say kabhi. so. Yeah, it depends. You've not been called, let's say, too much. No, never. It's amazing. I think you're the first girl who sat Yeah. on this couch and said that I've not been called too Too much. much. Yeah. Why do you think that is? Because I have always been like in a shell, you know, always been shy and not very like outgoing, and also I've been raised in that particular way. अगर थोड़ी बहुत मैं गड़बड़ करती थी मेरे को अच्छी खासी मार पिटती थी. So I think these are the reasons like I've never been called like too much. अब ये है कि इंडस्ट्री में आके sometimes I have started speaking for myself. तो उसमें you can say I am little dramatic or like rebel and bold like now, like but earlier I never used to be such So you things, have yeah. been a good girl. Yeah, I've always been a good girl, yes. Okay, now the other segment, the other section on this is feedback and remarks. Yeah. So this is about like what kind of a student were you? ठीक है. पहला section इस पर है a remark that was. बचपन के रिपोर्ट कार्ड याद हैं? उस पर क्या रिमार्क्स हुआ करते थे? And that तो जब हम अगर if you like standing in like top 5 तो जो हमारी प्रिंसिपल मैम होती थी तो वो साइन सिग्नेचर के साथ साथ वेल डन भी लिखती थी, वेरी गुड, वेल डन. तो वो रिमार्क्स मुझे याद है. उसके अलावा तो ऐसे कुछ मुझे याद नहीं है. अच्छे ही लाइक पॉजिटिव रिमार्क्स ही मिलते थे बिकॉज आई वॉज अ गुड स्टूडेंट Yes. till 10th class. After अच्छा. 10th, it was like a complete downfall. But till 10th, I was a
good student, above average student. ये 10th के बाद थोड़ा सा सडनली आता है डाउनफॉल, Yeah, yeah, स्पेशली yeah, 11 में, देन yeah, yeah. 12 आप फिर से अपने आप को थोड़ा संभालने लग जाते नहीं हो. नहीं, मेरा तो 12th भी नहीं संभला. Did you have Yeah. maths? Yeah, I had maths. And वो trigonometry मेरे दिमाग से ऊपर जाती थी. So yeah. A remark that you wished for. Was there something that you wished your teachers talked about you? ऐसा कुछ था कि यार ये चीज मुझे कभी किसी ने कही नहीं, ये कह देते या ये मेरे लिए लिख देते तो अच्छा होता. मुझे ऐसा लगता है कि लिखना तो नहीं, बट आई रियली वांटेड टू बी, वो जो एनुअल फंक्शन होता है, तो एनुअल फंक्शंस का मुझे पार्ट हमेशा से होना था. बट क्लास 1 से क्लास 12 तक मैं एक भी एनुअल फंक्शन में नहीं रही हूँ. क्यों? आई डोंट नो, जो बाकी स्टूडेंट्स थे उनको शायद मौका मिला, मुझे नहीं मिला था. तो दैट्स दी ओनली थिंग. बट आई जेन्युइनली लव माई स्कूल, ऐसा मुझे कोई कंप्लेन नहीं है. लेकिन दिस इज वन थिंग दैट कि हाँ, मुझे उस टाइम पे स्टेज पे होना चाहिए था. So you grew up and you were born and raised in Jabalpur. Yeah. है ना? Yeah. मुझे बताओ कि गर्लहुड कैसा था, बचपन कैसा था? बचपन मेरा बहुत सीधा साधा था. सिंस आई हैड माई सिस्टर्स हु आर लाइक वेरी एल्डर टू मी, तो कभी मैंने ऐसा खेला नहीं है ज़्यादा लाइफ में. मेरे दोस्त रहते थे, 3-4 दोस्त रहते थे जो कॉलोनी में रहते थे. तो हम बाहर जाते थे, एक टाइम फिक्स होता था तो वापस बुला लिया जाता था. और मम्मी का ये था कि तुम दूसरी जगह नहीं जाओ, जो बाकी के दोस्त थे उनको तुम यहाँ पे बुला लो, यहाँ पे खेलो. तो कॉलोनी में भी हमें दूर बिल्डिंग्स में नहीं जाने दिया जाता था. आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट शी यूज्ड टू कम फ्रॉम. वो एक सिक्योरिटी के सेंस से वो रहता, सेफ्टी के सेंस से वो रहता था. सो मैंने ज़्यादा खेला नहीं है, तो उस चीज़ का मुझे मलाल है. और सिंस मैंने ज़्यादा खेला नहीं है, तो मैं बदमाश भी नहीं रही हूँ, मैं बहुत सीधी सादी रही हूँ. सो मैं चाहती हूँ कि मैं बदमाश होना चाहती हूँ. लिटरली अब मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं बहुत मस्ती करूँ, बहुत बदमाश रहूँ, प्रैंक्स करूँ. तो आई वॉन्ट टू लिव दोज थिंग्स विच आई मिस्ड ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड. सो आई हैव बीन अ गुड गर्ल अब, but I want to be a bad girl now. Yes, absolutely. All of us eventually. But tell me, when did you realize this? कब इस बात का एहसास हुआ कि यार I am done being too good. Now I want to be bad, or actually let me put it this way, I want to be myself. इस बात का एहसास कब हुआ? आई थिंक बॉम्बे आने के बाद और विथ टाइम के हिसाब से वो रियलाइजेशन हुआ. और जब ऐसे मुझे फ्रेंड्स मिले, सर्कल मिला वेर आई कुड बी माई सेल्फ, और वो एकदम से सडन नहीं होता है, वो धीरे धीरे यू नो आप ओपन अप होते हो. और फिर यू रियलाइज़ कि यार ये करने में कितना मज़ा आ रहा है. सो राइट नाउ द सर्कल दैट आई हैव, बहुत वो दोस्त लोग नहीं होते वो जो हुड़दंग मचाते रहते हैं, तो उनके साथ कभी कभी आप जस्ट इन्वॉल्व हो जाते हो, तो वो मुझे बड़ा इन्जॉयमेंट जैसा फील होता है. तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये सही चीज़ें मैंने बचपन में नहीं की है. और मतलब मस्ती के ही सेंस में. पर क्यों ऐसा लगता है, like why were you not able to do those things? What do you think is the reason? क्या आसपास ऐसा था that because it's there, right? Yeah, like yeah, we yeah. and especially for girls, society loves quiet girls. Yeah, absolutely. Society loves good girls. Absolutely. So why do you think that was? वो इतनी ज़्यादा वो reservation क्यों आ गई? क्योंकि पहला तो डेफिनेशन ही वही होती थी कि मतलब इफ़ यू आर क्वाइट, इफ़ यू आर शाय, इफ़ यू रिस्पेक्ट एल्डर्स, विच इज़ स्टिल अ गुड थिंग, बट इफ़ यू आर नॉट लाउड, तो आप एक गुड गर्ल होते हो. तो मुझे हमेशा से था कि नहीं यार, गुड गर्ल, कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, ये मिलेंगे. सो मैं हमेशा से उस उस ब्रैकेट में फिट इन होना चाहती थी कि सब मेरी तारीफ़ करें, मैं गुड गर्ल रहूँ. तो इसलिए मैंने कभी वो कोशिश भी नहीं की कि मतलब मैं रिवोल्ट करूँ या रिबेल करूँ किसी भी चीज़ के लिए. तो वो साइकोलॉजिकल है कि मतलब जस्ट लोग आपको गुड गर्ल बोलें तो आप उस ब्रैकेट में फिट इन होना चाहते हो. This is so true. What you've said is actually so true. हम फिर people pleasers बन जाते हैं. You know, this is how people pleasing comes in us कि validation जिसको बोलते हैं, हमें validation चाहिए होता है. Yeah. पर how was your bond like with your parents? मम्मी के साथ, पापा के साथ growing up bond कैसा था? बहुत अच्छा. I think मुझे ना like among all my sisters I'm the luckiest one, क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें मिली हैं, लाइक राइट फ्रॉम एजुकेशन और बाकी एफर्ट्स, जो बाकियों को मतलब लाइक they've been raised nicely, no doubt in that, बट मुझे ज़्यादा सिंस आई वॉज द यंगेस्ट, तो मेरे लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी.
और पेरेंट्स ने लाइक जितना उनसे हो सकता था दे हैव डन देयर ऑल. सो माय बॉन्ड विथ माय मॉम एंड विथ माय डैड इज़ अमेजिंग. एंड मतलब छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं बोल लूँ कि मैं रोज़ लेट होती थी स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, तो पापा बेचारे मेरे को ऐसे सुबह सुबह गाड़ी में Oh उठ के my मेरे को God, ड्रॉप करके जाते थे. same. I know. Yeah. एंड फिर मम्मी के साथ भी ऐसा था कि सुबह का खाना दोपहर का खाना जब मैं स्कूल से आती थी तो हम साथ में खाते थे. फिर मम्मी मेरे को लाइक चिपका के सुला देती थी. तो ये चीज़ें जो है मतलब मैं आई गेस 10th या 12th तक मम्मी के साथ ही सोई हूँ. तो फॉर मी शी इज़ अ वेरी कंफर्ट स्पेस फॉर मी. मुझे ये बताओ कि when you grow up with sisters around and when you grow up with so many girls and women around, वो किस तरह आपकी mindset को या आपकी psyche को किस तरह वो shape करता है? सिंस आई हैड लाइक नो मेल पर्सन, क्योंकि पापा की जो पोस्टिंग होती थी उस टाइम पे वो बाहर रहती थी. अच्छा. So it was always like दादी, मम्मी, my sisters, स्कूल में भी it is all All girls. girls. हाँ. So वो जो सिर्फ गर्ल्स का, और दोस्तों में भी जो हम कॉलोनी में घूमते थे वो मोस्टली गर्ल्स थी, एक दो ही लाइक लड़के होते थे. हाँ. तो इन दैट इन्वायरमेंट जब मुझे उसके बाद जब कॉलेज जाना पड़ा या कॉलेज से मुंबई आना पड़ा, तो वो मुझे लाइक टू मीट अ गाय, टू टॉक टू अ गाय, वो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करता था. मतलब आई यूज्ड टू बी लाइक वेरी नर्वस कि यार मैं क्या बात करूँगी, कैसे बात करूँगी. आई एम वेरी कंफर्टेबल विद गर्ल्स बट विद गाइज आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल at that point. हाँ. Now I am okay. Okay. They all are my buddies. हाँ. So I'm very chill. So I think वो जो sensitivity होती है एक जो लड़कियों में, since I've been surrounded with girls, तो वो एक care मतलब किस दूसरों को सबसे पहले रखना, अपने आप को लाइक सबसे आखिरी में रखना, वो शायद ज़्यादा बढ़ गई है. एंड ऑल्सो लाइक नो वन वॉज लाइक वेरी रिबेल इन माई हाउस. तो शायद वो भी एक रिफ्लेक्ट होता है. But growing up with sisters, how fun must it have been? Like, how was your bond with sisters? Was It's it like good, it's good. Was it like वो respect वाला or was it It was bit more, of a friends? no, it was zone? more of a respect because they all are like बहुत बड़े very लोग, very right. elder to me. So वो सब मेरी माँ है. ठीक है. I have a माँ and like वो जो बाकी के हैं वो सब मेरी माँ है. तो it was more of a respect. एक से मेरा बहुत झगड़ा होता था. आज भी होता है. So उससे मतलब she was like very much concerned कि मैं पढ़ाई में क्या कर रही हूँ, मैं अपनी स्टडीज़ में वो मुझे बहुत ग्रो करना चाहती थी कि मतलब डांस में, स्टडीज़ में, वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी. शी हैड लाइक लॉट ऑफ एम्बिशंस मुझे लेकर. तो वो हमेशा मुझे छड़ी लेकर बैठी रहती थी कि चलो चलो बैठ के पढ़ो. तो हम बहुत बचपन में बहुत झगड़ा किए हैं. अभी नॉर्मल हो गया है, लेकिन फिर भी जब हम बैठते हैं थोड़ी देर हम नॉर्मल रहेंगे, लेकिन फिर हमारा झगड़ा चालू हो जाता है. कितना एज डिफरेंस है ये? ऑलमोस्ट 12. ओह. Yeah. ओह वाओ. और उससे बड़ी तो और है. हाँ, राइट. हाँ. Right. सो अब फैमिली के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बोला है ना, तो अभी मेरे को देखना घर से कॉल आएगा कि तुम्हें मना किया था कि घर के बारे में कुछ नहीं बोलना है, बात नहीं करनी है. नहीं हम ज्यादा Yeah. intrusive नहीं होंगे. Yeah. Obviously, the only reason I want to ask is that especially in for example, even I've heard people saying कि ओ तुम सिर्फ दो बहनें ही हो. Yeah. Even मेरे parents को आपकी सिर्फ दो बेटियां ही हैं. Yeah. So I am just imagining कि जबलपुर में कैसा था वो. It was exactly same. Yeah, did you ever Exactly get to same. hear कि ओ सिर्फ हाँ, बहनें हो? या. तो हम सब बहनें ही थी. तो जब मैं हुई भी थी तो वो जो होते हैं ना रिलेटिव्स होते हैं, तो उनको ये उम्मीद थी कि चलो अब ये आखिरी वाला तो लड़का होगा. ठीक है. बट मैं हुई थी तो वो कमेंट्स मारते थे कि अरे देखो आखिरी वाला भी लड़की हो गई. और फिर अगर हम कहीं जाते भी थे तो देखो 5 मूड़ियाँ हैं. तो हमारे यहाँ पे ये वो चलता है मूड़ियाँ, वो बुंदेलखंडी लैंग्वेज जो रहती है. तो वो था. और लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि पेरेंट्स ने मुझे मतलब मम्मी पापा ने कभी हम लोग को ऐसा वो फील नहीं कराया कि तुम लोग लड़कियां हो तो हम तुम्हें वो less. या यू Yeah. आर लेस, या तुम्हें जो तुम चीज़ डिजर्व करते हो वो हम कभी प्रोवाइड नहीं करेंगे. सो वो जितना अपने लेवल पे कर सकते दे हैव डन ऑल. A lot of places you've said कि अभी भी you said that you were a little shy and Yeah. you've been a little introvert. ये जो personality type होती है मुझे ऐसा लगता है कि sometimes it works in your favor
sometimes it does doesn't not work in your yeah, favor. yeah. Do you think people take advantage of that? एब्सोल्युटली अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हो सो इंट्रोवर्ट्स क्या होता है कि दे अवॉइड कॉन्वर्सेशन या दे अवॉइड फाइट जब तक नेसेसरी नहीं हो. अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो दे विल नॉट से मच. और उनकी पर्सनैलिटी भी वैसी होती है ना कि वो यूजली लाइक जवाब उल्टा देते नहीं है. ठीक है, तो लाइक बाय डिफॉल्ट पीपल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर फॉर ग्रांटेड. तो वो कुछ भी बोल के चले जाएंगे, यार ये तो कुछ बोलेगी नहीं, ये तो कुछ होएगा नहीं. तो ये ऐसा बहुत होता है इंट्रोवर्ट्स के साथ. एंड आई वॉज लकी कि ये मेरा इंट्रोवर्ट नेचर वो काम कर गया. बट स्टिल आई वॉज लाइक इन अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस. जब मैं मुंबई आई थी मुझे पता था कि ये मेरा लाइक नेगेटिव पॉइंट है. नेगेटिव पॉइंट वाई? बिकॉज क्योंकि दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स टॉकिंग, इट रिक्वायर्स नेटवर्किंग. तो मेरा टारगेट रहता था कि एटलीस्ट आई नीड टू मीट लाइक वन पर्सन एवरी सिंगल डे. ये मेरा लाइक एवरीडे एक्सरसाइज थी कि ताकि मैं मिलूँ, बात करूँ, उस चीज़ को मैं ब्रेक करूँ. तो ये मेरा लाइक प्रोसेस एवरीडे रहता था. बट क्या अभी भी थोड़ी सी मुश्किल होती है इन एब्सोल्युटली स्ट्राइकिंग अ कॉन्वर्सेशन? या सो इनिशियली पहले भी मुझे प्रॉब्लम होती थी जब मैं ऑडिशन देने जाती थी. सो आई यूज्ड टू बी वेरी नर्वस. पहले 3-4 दिन तो जस्ट मैं आराम नगर से ऐसी राउंड मार के आ गई थी. मेरी हिम्मत ही नहीं थी अंदर जाने की. हाँ. एंड फिर लाइक धीरे धीरे करते करते आई गैदर्ड करेज. और फिर उसके बाद मैं ऑडिशन देती थी. मुझे डर लगता था ऐसे लोगों की आंखों में देखकर. और फिर मैं वहाँ से कई बार मैं भागी हूँ. फिर धीरे धीरे ऑडिशंस मैंने देना लाइक शुरू किया. सो ये मेरा थोड़ा सा ड्रॉबैक है. आई एम वर्किंग ऑन ऑल दीज थिंग्स. और ऑल्सो लाइक जिस हिसाब से अभी मेरा सर्कल है तो मेरे दोस्त लोग मुझे खींच खींच के लेकर जाते हैं कि चलो यहाँ पे चलो, वहाँ पे चलो, इससे बात करो, उससे बात करो. सो like it's a everyday practice that I'm doing. Every introvert person needs Yeah. extrovert friends. Friend, I feel. absolutely. तब भी वो थोड़े ना वो शेल से बाहर आते हैं. Correct. बिल्कुल. At this point, I want to bring in a segment. Okay. Rinki from Panchayat has become such a loved character. Yeah. So there are a few comments and I'd love for you to react to those comments. Okay. Okay. डर लगता है ऐसी सिंपल एंड प्योर सोल का फ़ायदा ना उठा ले ये बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले. प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बी सिंपल, चेंज मत होना. आप जैसी हो आप वैसे ही रहना. दैट्स सो स्वीट, दैट्स सो स्वीट. मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं जैसी हूँ मेरा लाइक कोर वैसे ही रहे. मुझे इस पर एक सवाल पूछना है that so you've got this image now, okay? Yeah. This image of good girl, Good simple girl, girl, yes. simple girl, Yeah, good yeah. girl. क्या ऐसा do you think about these things कि यार if I glam up Yeah. or if I let's say basic सी चीज, if I do a makeover, Yeah. if I start talking more, people will stop looking at you that way. Do you think about this? नो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे ऐसा लगता है लोग ना किरदारों को प्यार करते हैं. तो लोगों ने रिंकी को बहुत प्यार दिया है. ठीक है, और उसी की वजह से लोग अभी सान्विका को भी प्यार दे रहे हैं. जब मैं दूसरा प्रोजेक्ट करूँगी जो कि एकदम कम्प्लीटली ऑपोजिट होगा, और अगर मैंने उस चीज़ को जस्टिफाई कर दिया, अगर मैंने कर दिया तो दे विल लव मी. आई थिंक सो. बस ये है कि अगर इफ़ आई ग्लैम अप और इफ़ आई डू लाइक अ मेक ओवर तो वो उनके लिए शॉकिंग हो जाएगा. ऑफ कोर्स. या जैसे कि मैं कभी कभी फोटोज में डाल देती हूँ ऐसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे. हाँ. तो होते हैं हाँ, शॉकिंग. क्या हो गया आपको? What? You're becoming like other Yeah, girls. एक तो ये yeah. other Other girls girls, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. Correct. Stop saying this that you're not like other girls. There's no problem in being like other girls. Yeah. This is Ashu Shukla 7674. The way she behaved and talk. Dream girl for any boy. BOIII. Boy, dream girl for any boy. What's happening? What is this sudden national crush tag और ये सब क्या हो रहा है ये? I have no idea. मैं तो बस जैसी हूँ वैसी ही हूँ. Thank you. Yeah. I just have thank you for all these comments, guys. उससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ इस पे. Dream girl and all. Dream huh? girl, yeah. Okay, I'll pick the next one for you. Oh, this is my favorite. Okay. किसी ने लिखा है love this female actor. Her nose structure is just like Hrithik. How would you like to react to this compliment? मतलब यार ऋतिक इज हैंडसम और नाक तो बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह. क्या नाक है उनकी. सो नाक के लिए मुझे इतने ज़्यादा लाइक अलग अलग तरीके से कमेंट्स आते हैं. Really? या
तो पहले बोलते थे कि अरे इतनी तेज नाक है, अरे वो सब्जी कट जाएगी तुम्हारी नाक से। और बचपन में आई नेवर यूज्ड टू लाइक माई नोज, इवन नाउ आई डोंट लाइक इट। आई थिंक लोग बोलते हैं ना कि सेल्फ लव स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक एक्सेप्टिंग योर नोज। आई थिंक मेरे लिए वो सबसे बड़ी चीज है। What? Yeah. Who says this? Yeah, Self-love yeah, yeah. starts with accepting your nose, Yeah, really? हाँ, मैंने कहीं पे like वो Instagram पे memes वगैरह नहीं आते, so this was like one of the memes that I came across. Then I really agreed to that thing. So Oh. जब मैं स्कूल में हुआ करती थी, I used to hate my nose कि नहीं यार। कैसी नाक है? Yeah. But you've got the highest validation now. Yeah. ऋतिक की नाक. ऋतिक की नाक। मुझे मिल जाए ऋतिक की नाक, मैं क्या क्या कर लूँ जिंदगी में. Okay. Oh, this is cute. Simple Sanvika's supremacy. Or Oh. the fire Fire. sign. Donald something लिखा Oh, है. Donald ने लिखा है। Okay. You know this person? Yeah, Donald is my friend. Thank you, Donald. Friends who comment on your pictures or videos or your work, keep them close. Yes. Thank you, Donald. Okay. Oh, ये तो मतलब this is the demand of the season. Get Jeetu and Sanvika together for an interview. They are never seen together in any of the Panchayat interviews. This is a question that I also have. Why are you not a part of all the main interviews? I don't know. We want to see you with the whole cast, and I hope that that happens for you next season. You're such an Yeah, hopefully. important character, यार. अब तो Hopefully, yes, definitely वो होगा। इस बार ये था कि मतलब I was not available at those dates, okay. तो इसलिए ये हो नहीं पाया था। But hopefully, like next season, we'll all be together. So रिंकी के हिसाब से सचिव जी एक ग्रीन फ्लैग क्यों है? क्योंकि he understands रिंकी वो सिचुएशन को जहाँ पे वो रह रही है, and he accepts her the way रिंकी is. उनको ये डिमांड नहीं चाहिए कि रिंकी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए. And also there's this comfort. He values her. He respects her. So that's why I think Rinki feels very comfortable with Sachiv ji. And for like वो जो भी करना चाहती है उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं. So that's why I feel कि रिंकी के लिए सचिव जी is a green flag for now. Yeah. And वो आते भी है टंकी पर भाई चाय पीने. Absolutely. So ये बात तो क्लियर है that what we need is support. Support. Absolutely. बाकी हम सब कुछ कर सकते हैं. Correct. Okay, very very ordinary looking. That's her USP. Yeah. She has depicted her character well. Thank you. Very very ordinary looking. तो मुझे पता नहीं इसका like मीनिंग क्या होता है? Yeah, like what does this really mean? आप मेकअप कर लो, अच्छी हेयर स्टाइल कर लो, अच्छे कपड़े पहन लो, आप लाइक डिफरेंट लुकिंग हो जाओगे. Correct. है ना? इस इंडस्ट्री के लिए, especially when you are trying for roles that needed to be a heroine, Yeah. does that become a disadvantage? Initially it used to be क्योंकि पहले भी जो मुझे ऑडिशंस आते थे वो इसी बैकड्रॉप के आते थे, एंड मैं अपने आप को कभी सुंदर नहीं मानती थी. तो जब मैं ऑडिशन देने जाती थी तो आई यूज्ड टू फील लाइक एवरी गर्ल इज लाइक सो प्रिटी. वहाँ पे जेन्युइनली इतनी सुंदर लड़कियाँ आती हैं ना, मतलब लाइक फ्लॉलेस स्किन, फ्लॉलेस बाल एंड सो वेल ड्रेस्ड. तो मुझे हमेशा से लगता था यार मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मैं वैसी क्यों नहीं हूँ. बट फिर जिस चीज़ को मतलब मैं कमी मानती थी, शायद वही चीज़ लोगों ने नोटिस की. लोगों ने नहीं, मतलब कास्टिंग वाले ने नोटिस की, एंड आई गॉट दैट ऑडिशन. आई गॉट कॉल फॉर दैट ऑडिशन. और फिर मैंने वो ऑडिशन दिया, और जस्ट बिकॉज जिस तरीके में मैं थी, रॉ, विथ नो हेयर कलर, विथ नो मच थिंग, जस्ट बेसिक मेकअप, तो इसी वजह से मैं कास्ट हुई हूँ. और वो कास्टिंग की वजह से आज मैं यहाँ पे बैठ के मैं बात कर रही हूँ. तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि यू नो वी आर नॉट दिस, वी आर नॉट दैट. हम दूसरों से बहुत कंपेयर करते हैं, लेकिन शायद वो ओरिजिनलिटी में ही यू नो लोगों को वो चीज़ पसंद आती है. Yeah. सो कभी ग्लैम रोल्स नहीं आए मुझे, कभी ग्लैम रोल्स नहीं आए. अब नाउ आई वांट कि हाँ थोड़ी सी मैं अपनी थोड़ी सी ना Baddie energy लेकर आऊँ और अपनी वो चीज़ चेंज करूँ. Absolutely. All right, last two. She is so simple, भाई. I feel something. और एक heart sign बनाया है whenever I see her. Oh. Why are people obsessed with simple लड़कियाँ? I don't know. Yeah. तो मेरे बहुत सारे ऐसे कजन भाई है जिनके लिए रिश्ते वगैरह आए, तो मेरे रिलेटिव्स, चाचा, ताऊ जी, ये लोग कह रहे थे कि यार अच्छी सीधी लड़की है, सीधी लड़की है, कर लेते हैं. करेक्ट. Why is
the world obsessed with सीधी लड़कियां. करेक्ट. क्योंकि सीधी लड़कियां ना उनके अकॉर्डिंग आवाज नहीं उठाती, उनको जो बोलोगे वो करेगी, वो सिर्फ अपने पति की सेवा में लगी रहेगी, घर के सेवा में लगी रहेगी, कुछ बोलेगी नहीं. सो इसलिए उनको सीधी लड़की बहुत अच्छी लगती है. हाँ. अब भले, और उसमें भी उनको ये चाहिए कि मतलब लड़की सुंदर होनी चाहिए. पहले जो मैट्रिमोनियल एड्स आते थे ना, तो उसमें ये डिमांड्स रहती थी, लड़की गोरी, सुंदर, टॉल, एजुकेटेड और फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड और गुड वैल्यूज, जिसको खाना बनाना आता हो. ये सारी चीज़ें लाइक मैट्रिमोनियल में आते थे. क्योंकि मैं मैट्रिमोनियल बहुत पढ़ती थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरी सिस्टर्स थी. हाँ. तो ये ऐसे ऐसे लाइक पूरी डिमांड्स लिख कर आती थी. सो या एंड सिंपल के भी अलग मीनिंग हो सकते हैं यार. लाइक we can be simple, like simple living, great thinking. but this simple is not that simple. Okay, and the last one. Yeah. If she stays like this, avoiding the Bollywood makeover that actresses go through, she would become a national pride. She is a sanskari Pookie. Oh God, संस्कारी. भाई मैं संस्कारी नहीं हूँ. Thank you for the comment and this love, but मैं, देखो हर इंसान फ्लॉड होता है, कहीं ना कहीं फ्लॉड होता ही है, तो मैं भी कहीं ना कहीं फ्लॉड हूँ. लेकिन संस्कारी वो ना एक बहुत हैवी वर्ड है, और सारे संस्कार ना वो एक लड़की से ही एक्सपेक्ट किए जाते हैं. Correct. कि ऐसे ड्रेसअप हो, ऐसे बात करो, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो. सो मुझे नहीं लगता कि मतलब मैं उनके संस्कारी के डेफिनेशन में मैं उतर पाऊंगी. लेकिन या आई एम वेल बिहेव्ड, आई वुड से, और आई नो लाइक कब कैसा करना है. Absolutely. थोड़ा सा मेकओवर तो चाहिए होगा यार, मतलब मैं भी थोड़ा सा बोर हो गई हूँ. सो थोड़ा मेकओवर तो मुझे भी चाहिए. आई एम जस्ट विशिंग कि जिस दिन मैंने जिम ज्वाइन कर लिया और मैंने अपनी बॉडी बना ली, आई रियली वांट टू लुक लाइक रियली हॉट. Yeah. What has been your biggest challenge in trying to make as an actor? मुझे पता है that you came to the city in 2016, if I'm not wrong, right? 2016. Almost 10 साल होने वाले हैं यार. And ये एक ऐसा profession है that also requires a lot of waiting. बहुत wait करना पड़ता है. How did you hold on to this? वो patience कैसे रखा? And किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा help की? मुझे ऐसा लगता है कि माई सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं, दैट इज़ लाइक वेरी हाई. आप मुझे किसी भी सिचुएशन में रख लो, मैं अपने आप को मोल्ड कर लूँगी. एंड देन आई विल ट्राई टू फिगर आउट कि कहाँ पे मैं गड़बड़ जा रही हूँ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एनालिसिस करना कि अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है तो क्यों नहीं वर्कआउट हो रही है. तो अगर क्या मेरा क्राफ्ट कमज़ोर है, या क्या मैं अच्छे से ड्रेसअप होकर नहीं जा रही हूँ. जैसे इनिशियली जब मैं ऑडिशंस के लिए जाती थी, विदाउट मेकअप जाती थी, एंड आई यूज्ड टू हैव लाइक लॉट ऑफ पिंपल्स. मैं ऐसे ही चली जाती थी. मेरे को लगता था कि वो नेचुरल. मुझे डांट पिट गई थी. मुझे कास्टिंग वाले ने बोला था कि अगर तुम मेकअप करना नहीं सीखी तो तुम ऐसी यहाँ पे 6 महीने बाद भी आराम नगर में स्ट्रगल करती हुई दिखोगी. तो ही वॉज राइट इन हिज ओन वे, क्योंकि कैमरे के लिए एक प्रेजेंटेबल होना ज़रूरी है, एंड ही वॉज राइट. एंड दूसरा मुझे ये लगता है कि हाइज एंड लोज होते हैं 100%. कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं हो रहा है, यू फील लाइक गिविंग अप. लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि आई थिंक इट्स अ वेरी इनबिल्ट थिंग कि मतलब लोज आते हैं, मैं उसको लाइक रिजेक्ट करने की कोशिश नहीं करती हूँ. आई एक्सेप्ट इट, और फिर मैं सोती हूँ. माई मेजर लाइक थिंग इज़ कि जब ऐसी सिचुएशन आती है, क्योंकि ओवर थिंक करते करते मेरी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है. सो इन दो सिचुएशन आई जस्ट स्लीप, आई रिलैक्स, आई ईट, एंड फिर उसके बाद सोने के बाद मैं अपने आप रिचार्ज हो जाती हूँ. तो उसके बाद फिर एनर्जी आ जाती है मुझे. पॉजिटिव रहना ज़्यादा ज़रूरी है. सो दीज वर द थिंग्स कि उस टाइम पे यू नो जब भी मुझे लाइक लो पॉइंट फील हुआ, इट वॉज लाइक मिक्स ऑफ थिंग्स कि ये सारी चीज़ें बैलेंस करके चलना है. We were talking about unlearning, right? Like कुछ चीजें जो हमें unlearn करनी पड़ती है, which is asking loudly. Are you now able to ask for what you deserve? Yes. हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काम करते करते मतलब वो रिबेलियस वाला वो जो नेचर होता है, तो वो आ गया है. इट इज़ ऑल्सो बिकॉज कि यार वो चीज़ें आपको कितनी पेशेंटली आप चीज़ें मांगो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्टार्टिंग में काम करना शुरू करते हो तो आपको पैसे टाइम पे नहीं मिलते. ठीक है, ये हर एक्टर का या हर आर्टिस्ट को उनकी प्रॉब्लम रही है. तो जब मैं एड्स भी करती थी लाइक इनिशियली, आपको 5-5 6-6 महीने हो जाते हैं, आपको पेमेंट नहीं मिलती है. तो फिर वो एक पहला स्टेज होता है व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग लाउडली. अब मैं थोड़ा सा लड़ाई में प्रो हो गई हूँ, तो मैं लड़ लेती हूँ. All right, we'll end with a final segment. Yeah. Okay, it's again a fun game जिसका नाम है The Firsts. Okay.
लेट्स सी कितना याद रहता है. फर्स्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री. माय फर्स्ट फ्रेंड इज एम एल अशोक. सो ही इज़ द गाय जिसको मैं सबसे पहले मिली थी बॉम्बे में. वी मेट जब मैं एज एन एडी काम कर रही थी. सो आई मेट हिम देयर एंड ही स्टिल माई लाइक रियली गुड फ्रेंड. आज ही उसका कॉल आया था, मैंने फ़ोन नहीं उठा पाई. सो या. First email ID. It was some stupid email ID, I must say. क्या मैंने पूजा इंडियन के नाम से Pooja Indian. सो उस वक्त मैंने बना ली ये सोच के इंडियन कि मतलब इट्स नॉट इन्वॉल्विंग योर बैकड्रॉप और लाइक सरनेम एंड ऑल दोज Correct. थिंग्स. Yeah. सो मैंने इंडियन एज माई आइडेंटिटी उस हिसाब से बना दी, पूजा इंडियन this @gmail.com. First email IDs. Oh my God. Yours was Gmail? या. उसमें था Gmail. हम तो Yeah, वही yeah. Yahoo और Hotmail और ये सब पर ओ या there. राइट याहू है ना? याहू Yahoo हुआ Yahoo, होगा यार. हाँ. Gmail बाद में बाद में आया. आया, करेक्ट. First crush. I think it was ऋतिक रोशन 6th क्लास में. Yes, नाक भी है आपकी तो ऋतिक Oh, की जैसी. yes. Oh my God. After कहो ना प्यारे. Yeah. Obviously. Yeah. What's your favorite film of Hrithik? उस टाइम पे कहो ना प्यार थी डेफिनेटली, क्योंकि वो एक पल का जीना है आया था एंड आई वाज लाइक क्रेजी फैन ऑफ दैट सॉन्ग. So Hrithik has also done films like मैं प्रेम की दीवानी हूँ and all हाँ. of that. मुझे तो वो भी पसंद है. हाँ, मैंने देखी है और मुझे बड़ी मजा आती है कि टाइम पास में आप बस उसको लगा लो और देखो और एंजॉय करो. Yeah. उस टाइम पे यस, ही वाज माय क्रश. All right. First audition. बहुत ख़राब गया था फर्स्ट ऑडिशन, बहुत ख़राब. मुझे पता ही नहीं था कि ऑडिशन कैसे देते हैं और मुझे किसी ने भेजा था. सो देयर वाज दिस डांस टीचर, उन्होंने बोला था कि तू जाके वहाँ पे दे दे. तो मैं गई और उनने बोला कि पहले तो मुझे पता भी नहीं था कैमरा फेस कैसे करना है. तो मैं यहाँ वहाँ देख रही हूँ और फिर वो वहाँ से क्यों दे रहे हैं तो मैं उनको देख रही हूँ और समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैरेक्टर होता क्या है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आया था. तो इतना गंदा ऑडिशन गया था कि मैं क्या बताऊँ, कि उसके कुछ 20 दिन तक मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया था. मेरे को वो फोबिया हो गया था ऑडिशन का. First time you felt empowered as a girl. मैं बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं कैसे बोलूँ यार. When I took stand for myself, when something bad happened and it was like 3-4 years back, उस टाइम पे there was something, किसी ने बदतमीजी की थी and I took a stand for myself. पहले क्या होता है कि when you are kid, जब आप बचपन में होते हो, ये सही चीज़ें जब होती है तो आपको समझ ही नहीं होती है कि ये सही चीज़ें हुई है. ये आपको बहुत टाइम के बाद हिट करता है और ऐसा नहीं कि आप सोचोगे तो हिट करेगा. रैंडमली इफ़ यू आर कुकिंग समथिंग, यू आर वॉचिंग समथिंग, कुछ चीज़ आपकी पुरानी एकदम से थॉट आ जाएगा, वो आपको हिट करेगी. Correct. ठीक है, तो फिर आप ना वो एक ट्रिप में चले जाते हो और फिर आपको उस चीज़ के बारे में बुरा लगता है कि यार ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, और मैंने कुछ कुछ किया नहीं ही बोला. नहीं. सो व्हेन जब वो बदतमीजी हुई थी तो फिर देन मैंने अपने लिए वो स्टैंड लिया. तो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी. Yeah. ज़्यादा मैं एलाबोरेट करके नहीं बता सकती Absolutely यार, no. बट Of course. बिल्कुल. बट मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू फील कि आपके साथ गलत हो रहा है इन एनी मैनर, तो एटलीस्ट आवाज़ उठानी चाहिए विदाउट थिंकिंग कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, या अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, या ये हो जाएगा, वो जाएगा. जस्ट टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ. Yeah. Yeah. Thank you so much, Sanvika. This has been such a lovely conversation. Everything, I think we know you better now as a girl. I finally want to end by something very interesting that you Yeah. also shared on your social media, which is IMDb popularity list निकली है हाँ जी. और उसके रैंक 3 पर सान्विका है एंड शाहरुख खान इनके बाद आ रहे हैं अरे फोर्थ पर. आई गेट लाइक सो एम्बैरेस्ड कि मैं क्या बताऊँ कि शाहरुख सर इज़ दी शाहरुख सर एंड IMDb की जो लिस्ट होती है आई थिंक वो वीकली होती है. सो आई एम वेरी ग्लैड कि मतलब मैं उस थर्ड पोजीशन पहुंची हूँ. एंड मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था कि वो जो लिस्ट का वो जो लॉट था, देयर इज़ आमिर सर, देयर इज़ ऐश्वर्या राय मैम, देयर इज़ मी एंड देयर इज़ शाहरुख सर. सो वो लॉट में आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. बट आई एम लाइक नो वे क्लोज टू शाहरुख सर. Yeah. दिस इज़ द फैक्ट दैट आई नो एंड एवरीवन नोज. बट बस अपने आप को वहाँ देखना मुझे बड़ा अच्छा लगा था. You know, Urvashi Rautela was on this show. Okay. Urvashi was on this show, and you know how she is, right? I Yeah, just yeah. love her. I just love her. She Yeah. is herself. Yeah. So she said that Yeah. after Shahrukh, अगर Yeah. कोई अपनी फिल्म को अच्छे से अच्छे प्रमोट promote करता है so तो मैं हूँ. I saw that. Yeah. I wish इतना confidence मुझ में कभी आए, लेकिन नहीं चाहिए मुझे वो confidence.
Finally, so many girls will be watching you. बहुत सारे girls who have come like you, like who Yeah. were born and raised in a small town with big dreams. Yeah. What would you finally like to say to all the girls? कि never give up on your dreams. Sometimes आपको अपने लिए fight करनी पड़ेगी. Always make sure कि you take a stand for yourself. अपने लिए fight करना is never wrong. So never be in that guilt. Usually हम girls क्या होते हैं हमें जिस तरीके से पाला जाता है तो usually अगर हम फाइट करते हैं ना किसी चीज़ के लिए तो हमें सेल्फ गिल्ट होने लगता है कि यार मैं अच्छी लड़की हूँ क्या, मैंने इसके साथ झगड़ा कर लिया, उसके साथ झगड़ा कर लिया. Absolutely. लेकिन नो, आई थिंक वो जो फाइट है वो बहुत ज़रूरी है एंड ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ. दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से. या Thank you so much. I have something for you before you leave. Wow, that's so sweet. I've been getting flowers so I have a many. sunflower for you. Thank you, thank you. Thank you so much, Pari. When was the last time somebody gave you a flower? I think 2 days back. Oh wow! At least Yeah, कहीं से तो मिल रहे हैं Yes, yes, फूल. yes. और वहाँ पे भी मुझे सनफ्लावर ही मिला था. So thank you everyone. Thank you, Pari. Thank you.